Good morning to all of you. Am I audible? Good morning. Good morning to all of you. Am I audible? So, in today's class, we are going to start a new topic, that is Indian National Congress, right? Birth of Indian National Congress and all the debates around Indian National Congress. This we have to discuss in today's class. Birth of Indian National Congress in the year 1885, right? Some of the details I have already discussed with you, that birth of Indian National Congress was in December 1885. You all know this. December 1885. What was the date? Date of birth of INC? It was 28th December, right? This I have already discussed with you. Where? At which place? So it was which place? Bombay. Okay. Gokul Das Tejpal Sanskrit College campus, right? So Bombay. Gokul Das Tejpal. Gokul Das Tejpal Sanskrit College campus. Sanskrit College campus. We have already discussed that previously. This conference was scheduled in Pune, but due to the outbreak of a disease that's called cholera, right? It was shifted to Bombay, right? This was the main point here. Another important point that I've already discussed with you is there was a regional political association in the year 1876. The name of this regional political association was Indian Association. Okay, and one of the most important member in Indian Association was S.N. Banerjee, right? And at this time, who was the viceroy? We all know it was Lord Lytton. Lytton was the viceroy, and Lytton is known for his reactionary policies. Okay, we have already discussed in the last class that Lytton was trying to suppress what? Lytton was trying to suppress the growth of Indian nationalism. So this organization, Indian Association, okay, the founders, one of the important founders, that is S.N. Banerjee, thought that there is a need to form a all India political body because that will be the symbol of Indian nationalism. So he realized the importance of that. He also opposed some of the policies of Lord Lytton, which we have previously discussed in our classes. Now, what is happening here is that, okay, this person, Indian Association founder S.N. Banerjee, right? One conference was held in 1883 that I have already discussed with you, and it was decided that in 1885 December again the conference of Indian Association will be held. Okay, in December 1885, the conference of Indian Association was held at two places. One was Jabalpur in Madhya Pradesh, and the second was Prayag, that's in Allahabad. This also we have discussed, and we can say that the conference of second All India National Conference of Indian Association, it got coincided with which organization? It got coincided with, okay, Conference of Indian National Congress. दोनों एक ही साथ हुए, and that's why S.N. Banerjee could not attend the session. This is one of the important point. Now, second important point here is that I have told you that this year is very much important, 1885. So whatever the facts and informations that you find, they are near to 1885 will be important for exam. जो भी 1885 के आसपास के years हो वो आपके एग्जाम के लिए important हो जाएंगे. For example, क्या होगा 1885 के पास का ये? 1883. That is what? Ilbert Bill controversy. आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे, you will get question from this topic. Ilbert Bill controversy है prelims में question. Ilbert Bill controversy से, okay? In the same way, इसके पास एक और डेट है, that is 1887, and here we see Indian National Social Conference, INSC, that was also called the Social Reform Cell of INC. इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं socialist reforms में. Indian National, this is what? Indian National Social Conference, इसको हम कहते हैं Indian National Social Conference,
and this is also called social reform cell of INC. इसको हम क्या कहते हैं? सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, राइट? याद करो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म बताया था. ठीक है, ऑक्सिलरी बॉडी, ओके, टू रेज द इश्यूज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड व्हाट वाज द नीड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. फिर यहाँ पे आस-पास तो नहीं है, बट 1876 तो है ही है, और 1878 दैट इज VPA एंड आर्म्स एक्ट, ये भी पूछा जाता है. दिस इज आल्सो आस्क्ड इन एग्जाम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट. ठीक है. अच्छा देखो, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. ईयर क्या था उसका? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, व्हाट वाज द ईयर? 1885, द सेम ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इन द सेम वे मद्रास में देयर वाज अ RPA, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट RPA? मद्रास महाजन सभा. ईयर क्या था? 1884. 1884. ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो जो इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल ईयर है, जैसे 1857, 1885, 1905, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके आसपास के जितने इवेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, बिकॉज दे मार्क अ चेन. दे आर द चेन ऑफ इवेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ Indian National Congress was formed. And when this Indian National Congress was formed, what we know that when this Indian National Congress was formed, right, uh, the founder of this Indian National Congress was A.O. Hume. Right, this founder was A.O. Hume. Ellen Octavian Hume was the founder. A.O. Hume was the founder. Founder was A.O. Hume. A.O. Hume. Okay. And the first president was the first president was W.C. Banerjee. Okay, so these two facts are very important. Founder was A.O. Hume. A.O. Hume was the founder, and the first president of Indian National Congress was Bhumesh Chandra Banerjee. That is also known as W.C. Banerjee. ठीक है ना? तो W.C. Banerjee भी हैं. A.O. Hume and W.C. Banerjee. These two names are important. Now, a common idea, and that is what? When INC will be formed, which leaders will be the most important leaders of INC, or who will be the founder leaders of the Indian National Congress? So the answer is early nationalist leaders. ठीक है, जो RPA से जुड़े हुए थे, और those who were the early economic critique. याद करो, इकोनॉमिक पॉलिसीज में बताया था मैंने कुछ ना, दादा भाई नौरोजी, right, was an early economic critic. G.V. Joshi was an important critic. G. Subramaniam Iyer was an important critic. M.G. Ranade was an important economic critic. तो याद रखना, economic critique were the early nationalists also, and these early nationalists means the leaders of regional political associations also. So who will be the most important members of Indian National Congress in its initial phase? So the answer is very simple. Okay, and the answer is right, early nationalists. So write this: founding members, founder members, or founding members of INC, where this is a hint so that you could connect the things. Early nationalists, or कौन लोग होंगे? Early economic critiques, early economic critiques, or we can say that the leaders, important leaders who were associated with RPS, who were associated with RPS, regional political associations, or the leaders who were associated with leaders who were associated with the leaders who were associated with socio-religious reform movements in India, right? ये लोग होंगे, क्योंकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हम कब पढ़ते हैं? 19th सेंचुरी. एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम क्या है? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी. And formation of Congress year is what? 1885. This is also what? 19th century. अंतर क्या है? Social religious reform movement started in first half of 19th century, and formation of Congress is in the second half of 19th century. But in this period from 1830s onwards,
RPS तो डेवलप हो ही रहा है, RPS आर डेवलप्ड, ओके, so that is an important point, okay. Now, who was the viceroy of India when INC was formed? This is an important question, ठीक है. तो आपको पता है रिपन का टाइम क्या था, 1880 to 1884, तो 84 के बाद आ चुका था डफरिन, लॉर्ड डफरिन, क्लियर. So Lord Dufferin was the viceroy of India when INC was formed. So write this. Who was the viceroy of India when INC was formed? So the answer is very simple. That is Lord Dufferin. Lord Dufferin. ठीक है. अच्छा एक बात और याद रखना, फाउंडर एंड फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी वाज A.O. Hume. ये दोनों कौन था? A.O. Hume था. फाउंडर ऑल्सो and first general secretary of Indian National Congress also, it was A.O. Hume, right. So which leaders were associated? If you want to know some names here, write some names here, you can write some names here. Which leaders were associated? Write some names, important name. एक नाम तो पहले ही आपको पता चल गया, WC बैनर्जी, WC बैनर्जी प्लस दादा भाई नौरोजी, MG रानडे, दादा भाई नौरोजी, MG रानडे. अब MG रानडे का कनेक्शन समझो. MG रानडे इज अर्ली नेशनलिस्ट, फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और MG रानडे वाज द गुरु ऑफ टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, एंड गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी. तो गांधी का कांग्रेस में जगह बनाना आसान कैसे हो गया? ठीक है, कनेक्शन, ठीक है, अच्छे लोगों से कनेक्शन बना के रखना, ठीक है. तो गांधी ने किससे, गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोखले थे और गोखले के गुरु MG रानडे. तब अंदाजा लगा सकते हो कि MG रानडे वाज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, गोपाल कृष्ण गोखले वाज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन. तो गांधी की जर्नी थोड़ी सी आसान तो हो ही जाएगी, राइट. नाउ राइट नेक्स्ट नेम. नेक्स्ट नेम इज SN बैनर्जी. SN Banerjee could not attend the session on 28 December 1885, but he was, okay, one of the early members of Indian National Congress. Anand Mohan Bose, G. Subramaniam Iyer, okay, right. Anand Mohan Bose, G. Subramaniam Iyer. These are the leaders. Anand Mohan Bose, G. Subramaniam Iyer, फिरोज शाह मेहता, ठीक है. और भी अब आप कुछ नेम से फेमिलियर हो चुके हो. नाउ यू आर फेमिलियर विद सम ऑफ द नेम्स. अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, that when I discussed RPS with you, regional political association, तो what was the method of these leaders of RPA, regional political association? इनका मेथड क्या था चीजों को डील करने का? पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है ना. दे विल राइट एप्लीकेशन, ओके, दे विल सेंड पिटिशंस, दे विल ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है ना. तो इनका तरीका क्या है? पीसफुल था, ये बताया था ना आपको. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनेगी एंड इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज अ ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी, तो इसके मेथड्स और प्रोग्राम्स क्या होंगे? पीसफुल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स होगा, ओके. सो ऑल दीज लीडर्स आर विच लीडर्स? ऑल दीज लीडर्स आर द moderate leaders, we can say. So write this, the early nationalists were the moderate leaders. Early nationalists, moderate leaders, moderate leaders. Got it? कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं एंड देन आई विल एंटर इनटू द टॉपिक. जैसे एक क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी कभी आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे कि नहीं रहे थे? महात्मा गांधी वाज ही प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? यस, वन सिंगल टाइम, एक बार रहे थे, बेलगाम स्टेशन 1924. राइट दिस, राइट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तब हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें पढ़ने को. राइट दिस, बेलगाम स्टेशन, ओके, 1924 फॉर अ सिंगल टाइम. ये क्या था? सिंगल टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आईएनसी प्रेसिडेंट वाज महात्मा गांधी, ठीक है. एक बार आईएनसी प्रेसिडेंट महात्मा गांधी रहे थे 1924 में, याद रखना है. इफ द क्वेश्चन कम्स दैट हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये तो आपको पता होगा, व्हाट विल बी द नेम? एनी बेसेंट, ठीक है. थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी. वाज एनी बेसेंट फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? नो, शी वाज associated with Theosophical Society. Write this. First women president of INC was Annie Besant. Annie Besant. This also we know. Now, if the question comes that first Indian women president of INC, so what will be name? You all know this. Sarojini Naidu. ठीक है.
फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट वाज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे अभी अ, एक हम डिस्कशन ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन दिस संडे, ठीक है ना। और टॉपिक क्या होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट रतन टाटा इज नो मोर, है ना। तो वी विल डू व्हाट, वी विल डिस्कस, ओके, द कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। देन हाउ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज्ड इन इंडिया, गॉट इट। हैवी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंड द रोल ऑफ टाटा फैमिली एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ टाटा फैमिली, ठीक है ना। ये लेक्चर हम संडे को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आई विल सेंड यू द लिंक, ठीक है ना। इसको डिस्कस करेंगे, तो ये मॉडर्न इंडिया और इन सारी चीज़ों से आके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें बॉम्बे प्लान वगैरह सबकी मैं बात करूंगा कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का अप्रोच क्या था, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फर्स्ट ओके, English man to become INC president. What will be the answer? First Englishman to become INC president. Is it Eo Hume? No. He was the founder and first general secretary. It was George Yule. Write this. First Englishman to become INC president. It was George Yule. First Englishman to become INC president. It was George Yule. Right, next. Yes. No, no, he was founder and first general secretary. He was not INC president. समझ गया आकाश? He was founder of Indian National Congress, first general secretary of Indian National Congress. He was not president of Indian National Congress. ध्यान से सुन, एग्जैक्टली तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। राइट, नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट वाज बदरुद्दीन तैयब जी। ईयर इज 1887। ये जानना क्यों जरूरी है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, ईयर इज 1887? क्योंकि जब मुस्लिम लीग बनेगी 1906 में, तो मुस्लिम लीग ये एलिगेशन लगाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ हिंदूज। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। 1887 आईएनसी प्रेसिडेंट वाज अ मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब जी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, in 1947 write this, in 1947 when India got independence, the INC president was J.B. Kripalani. In 1947 when India got independence, the INC president was J.B. Kripalani. J.B. Kripalani. इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, विमेन आईएनसी प्रेसिडेंट्स। विमेन आईएनसी प्रेसिडेंट्स कौन कौन रहा, तो टू नेम्स वी ऑलरेडी नो, वन इज एनी बेसेंट and the second is Sarojini Naidu and the third is Nalini Sen Gupta. Read this, Nalini Sen Gupta, this is the third name. Right, any besant 1917 सेशन में रही थी, सरोजनी नायडू 1925 में, and Nalini Sen Gupta in the year 1933. So there were 3 women president in Indian National Congress, ठीक है, 3 women president. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन है, दैट इज सूरत सेशन 1907। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, सारे इंफॉर्मेशन आगे रिकॉल होंगे। सूरत सेशन, यहाँ क्या हुआ था, एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसको हम जानते हैं सूरत स्प्लिट के नाम से। लेटर वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज सूरत स्प्लिट। तो जब सूरत सेशन हुआ जहां सूरत स्प्लिट हुआ, तो हु वाज द आईएनसी प्रेसिडेंट, आईएनसी प्रेसिडेंट कौन था? आंसर इज डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष was INC president 1907। एक और सेशन इंपॉर्टेंट है और ये सारी इवेंट्स आने वाली हैं हमारे डिस्कशंस में। 1916 में सेशन हुआ था लखनऊ सेशन, ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, देयर वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट एंड दैट वाज नोन एज लखनऊ पैक्ट, या लखनऊ पैक्ट हुआ था। एंड हु वाज द आईएनसी प्रेसिडेंट हियर? सो द आंसर इज A.C. Mazumdar. That is what Ambika Charan Majumdar was the INC president. A.C. Mazumdar was the INC president. आगे डिस्कस करेंगे कि what is the meaning of pact here, ठीक है ना। राइट, नेक्स्ट फैक्ट,
youngest president of Indian National Congress? Who was the youngest president of Indian National Congress? So the answer was Maulana Abul Kalam Azad, right? Maulana Abul Kalam, ठीक है, was the youngest president, ठीक है, right? Next important point, okay, national song Vande Mataram was first sung in the session 1896 in कलकत्ता. सबसे पहले वंदे मातरम यही गाया गया था 1896 कलकत्ता. वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया? 1896 सेशन कलकत्ता. और नेशनल एंथम जो है हमारा जनगण मन, ठीक है ना, नेशनल एंथम जन गण मन, इट वाज फर्स्ट संग राइट इन 1911 इन कलकत्ता सेशन. पहली बार इसको 1911 में कलकत्ता सेशन. 1896 वाला भी सेशन कलकत्ता में ही था, इट वाज आल्सो कलकत्ता सेशन. तो वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग इन 1896 कलकत्ता सेशन एंड नेशनल एंथम जन गण मन वाज फर्स्ट संग इन 1911 कलकत्ता सेशन. इसके बाद कुछ और सेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल राइट, ओके, 1905 सेशन, 1905 सेशन. This session was held at Banaras, so it is called Banaras session, and the president was Gopal Krishna Gokhale. ये सब important है. I will discuss later. Gopal Krishna Gokhale, 1905, Banaras, Gopal Krishna Gokhale. Then write this 1906 session. It was held in Calcutta. It was held in Calcutta, and the president was Dada Bhai Naroji. He was the president. 1906 Calcutta session. The president was Dada Bhai Naroji. Right, next. 1907, we all know this. 1907. एक और लिख लो 1908. Okay. In 1908, again Dr. Ras Behari Ghosh. 7 में भी, 8 में भी, ठीक है. 1908 वाला सेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, राइट. सो दैट वाज इन मद्रास. ओके. इसके बाद फिर से दो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, 1938 and 1939, right? 1938 and 1939. 1938 session, okay, right? Haripura session, and the president was Subhash Chandra Bose. This is what Haripura session, and here the INC president was Subhash Chandra Bose. और देखो 1939 सेशन इसलिए जाना जाता है, त्रिपुरी में सेशन हुआ था, and here a crisis emerged, and that is known as Tripuri crisis. So that's why this session is important. So this session was held in Tripuri, and here a crisis emerged, and that's why this session is important. This session is important for this crisis. That is what Tripuri crisis. ठीक है? नहीं त्रिपुरी, ठीक है. त्रिपुरी इज नॉट त्रिपुरा, इट्स त्रिपुरी, ठीक है ना. इसके बारे में भी देखेंगे. हरिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसे बॉर्डर्स हैं. स्टेट तो बाद में भी बने हैं ना, तो उसके अनुसार देखा जाता है, ठीक है ना. चलिए, तो त्रिपुरी क्राइसिस में प्रेसिडेंट, अब देखो क्राइसिस क्या था, वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर, बट यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड. पहले यहाँ सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. उसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस हैड डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया. सुभाष चंद्र बोस ने किसको डिफीट किया था यहाँ? पट्टाभी सीतारामैया को, राइट, वाज डिफीटेड. एंड पट्टाभी सीतारामैया किसके कैंडिडेट थे? ही वाज गांधीज कैंडिडेट. पी सीतारामैया वाज गांधीज कैंडिडेट, वो गांधी के कैंडिडेट थे. और गांधी ने क्या कहा? पट्टाभी सीतारामैया's डिफीट इज माय ओन डिफीट. पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है. अब यहाँ पे क्या हुआ? लोग दो गुटों में बंटने लगे. एक गुट गांधी के सपोर्ट में था, दूसरा सुभाष के सपोर्ट में था. तो सुभाष को लगा यार ये तो मतलब डिसयूनिटी आ जाएगी, पॉसिबल स्प्लिट हो सकता है. दैट्स वाई सुभाष रिजाइंड. और जब सुभाष ने रिजाइन कर दिया, सुभाष ने क्या किया? रिजाइन कर दिया. सुभाष रिजाइंड, एंड आफ्टर हिज रेजिग्नेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. तो ये क्राइसिस है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी विल डिस्कस इन डिटेल. याद रहेगा ना?
1939 Tripura crisis. Okay, Tripura session. A crisis. What is the crisis? Subhas defeated Pattabi Sitaramaiah, elected as president. Pattabi Sitaramaiah was Gandhi's candidate, and Gandhi said that Pattabi's defeat is my own defeat. Okay, and then Subhas resigned, and after his resignation, who becomes president? Dr. Rajendra Prasad. ये एकदम नहीं भूलना है. This is one of the most remarkable events in history. We cannot forget this. ठीक है ना? 1931 session is Karachi session. This is also very important, right? 1931 session is Karachi session. 1931 session क्या है? Karachi session. And in Karachi session, who was the president? So president was Vallabhbhai Patel. Who was the president? So president was Vallabhbhai Patel. 1931 Karachi session. Okay. प्रेसिडेंट वॉज वल्लभ भाई पटेल. ये भी हम डिस्कस करेंगे. लास्टली एक और मुद्दा देख लो, जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू आईएनसी प्रेसिडेंट थे कि नहीं? यस, ही वाज आईएनसी प्रेसिडेंट. कब कब आईएनसी प्रेसिडेंट थे? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. वन इज इन द ईयर 1929, दैट इज व्हाट? लाहौर सेशन. पहली बार 1929 में, दैट इज व्हाट? लाहौर सेशन. वन इज इन द ईयर 1936. 1936 में the session was held in Lucknow. That's Lucknow session. Lucknow session. And the second is 1937. The session was held in Fazpur. So that is Fazpur session. So we see Jawaharlal Nehru was elected as INC president for 3 times. कितनी बार elect हुए total? 3 times. Got it? That is one of the most important point. Clear? Now you leave one page in your notes. एक page छोड़ दो. Why? If you get any fact in test series or while solving PYQs that is related to INC session, right? If the event is important, the year is important, you will update. हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. I will update. I will discuss every event in my class. But still, you will leave one page. Okay, in case I missed any event. Okay, so you will अपडेट इट. ठीक है ना? एंड वी आर गोइंग टू अपडेट एवरीथिंग. सब कुछ क्लास में करने जा रहे हैं. ठीक है ना? कुछ छूटेगा नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी. बट स्टिल इफ आई मिस यू कैन अपडेट. ओके, बाय प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्सेप्ट पार्ट. कॉन्सेप्ट पार्ट पे आते हैं. ये फैक्ट मैंने इसलिए बताया कि आप ये बात समझो कि फैक्चुअल ओरिएंटेशन भी जरूरी है. आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो सेशन किस ईयर में है, कहाँ पे है, और सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है, हु इज द प्रेसिडेंट इन दैट सेशन, इन सभी बातों पे ध्यान रखना है. नॉट ऑल द सेशंस बट इंपॉर्टेंट सेशंस. जैसे वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आई टोल्ड यू दैट बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ रिमार्केबल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. व्हाई इट वाज अ रिमार्केबल इवेंट? बिकॉज ओके, वी सी दैट फ्रॉम 1830s onwards our leaders were trying to develop a pan-India political forum, but they were not successful in doing so, right? 1883s, 30s to 1880s, it is a period of almost 50 years. And here we see what? Development of regional political associations. Even the Indian Association organized, okay, national conference first and second, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो 1883 में और 1885 में. What could be the purpose? The purpose could be to accomplish the dream of forming a all India political party. यही purpose रहा हो, but it could not be done. लेकिन ऐसा किया नहीं जा सका. So finally, when in India 1885 Indian National Congress was established, so the dream was accomplished. सपना पूरा. कौन सा सपना पूरा हुआ? Which dream was accomplished? So the answer is the dream of Pan India Political Forum was accomplished. So what has happened here? We can say that, read this, the dream of an all India political forum, the dream of an all India political forum was accomplished, right? The dream of an all India political forum was accomplished. All India political forum का ड्रीम पूरा हो गया. The dream was accomplished.
Now I am asking you that, do you consider 1885 year, birth of Indian National Congress, as a sudden event or an accident in the history of India? Is it an accident or sudden event? No. It's a result of gradual process of development, right? It is a result of culmination of all our efforts that we made during 1830s to 1880s. इस बीच में हमने जो प्रयास किया ये उसी का एफर्ट है. That is the important point here. Okay, so what we can say here, that right this point, that the birth of INC was not an accident. Birth of INC was not an accident or not a sudden event, not an accident or not a sudden event in the history of India. It was not an accident or not a sudden event in the history of India, but but it was as a result of, write this line, but it was as a result of gradual process of development, but it was as a result of gradual process of development that took place between, as a result of gradual process of development. यहाँ पे हम लिख सकते हैं development of RPAs or gradual process of development that took place between 1830s and 1880s. Right, this gradual process of development, okay, that took place between 1830s and 1880s. अब आप एक बताओ एक बात कि if we think about one nation, so we need one national political party. कम से कम एक national political party तो हो. अब तक वो national political party हमारे पास थी ही नहीं. So can we say that the birth of Indian National Congress is also an organized expression of Indian nationalism? ऐसा नहीं था कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म था ही नहीं. ये कोई स्विच है कि 1885 में दबाया तो नेशनलिज्म का करंट दौड़ गया आपके शरीर में, ऐसा नहीं. इसके पहले भी नेशनलिज्म था, but it was disorganized. Now this is what an organized expression of Indian nationalism. So write this point, that birth of Indian National Congress was birth of Indian National Congress was an organized expression of Indian nationalism. It was an organized expression of Indian nationalism. पहले भी था नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन, बट वो किस रूप में था? आरपीएस, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन के रूप में. ठीक है, वो रीजनल एक्सप्रेशन हो गया. दे हियर वी सी व्हाट? नेशनल एक्सप्रेशन. एंड नाउ दिस पार्टी इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अ पैन इंडिया पॉलिटिकल फोरम. ठीक है, ये न तो केवल बंगाल की पार्टी है, न बॉम्बे की पार्टी, न केवल मद्रास की पार्टी. दिस पार्टी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडिया. दिस पार्टी इज रिप्रेजेंटिंग all class, all religions, ठीक है, all ideologies. So when you look at this structure, this party was all inclusive in nature. ये पार्टी क्या थी? This party was all inclusive in nature. All India, all class, all religion, सबके बारे में बात करने वाली पार्टी. ठीक है. So birth of Indian National Congress was an important event. Okay, it shows unity of India as a nation. पहले RPS थे. Now there is a pan-Indian political party. It means what? It shows, right? This. It also shows unity of India as a nation. It also shows the unity of India as a nation. As a nation, India की unity को भी दिखला रहा है. That's the one of the most important point. Got it? Now you can write something about Indian National Congress. एक introduction तो लिख ही सकते हो. ठीक है. अब हमें समझने की जरूरत है about the social composition of Indian National Congress. Right? Social composition of Indian National Congress. Why we need to understand? Because later Muslim League, okay,
will criticize Indian National Congress, okay, for its limitations. तो पहले से हमें ये बात समझने की जरूरत है कि what was the social composition of this party, right? Social composition of this party. So the answer is very simple. आप ये बताओ, right? Okay. Question आकाश, question related to Indian National Congress. Yes, I will give you the question. पहले finish कर लो. अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस लंबा चलेगा, ठीक है ना? अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है. ओके, नाउ आई टोल्ड यू दैट इट वाज ऑल इंक्लूसिव, ठीक है ना? किसी भी एक स्पेसिफिक क्लास या किसी भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की पार्टी ये नहीं थी. बट इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट सेशन वेयर इट वाज फाउंडेड और एस्टैब्लिश्ड, इट वाज 28 दिसंबर. 28 दिसंबर का डेट था, 28 December 1885. So only 72 delegates were there. On 28 December 1885, there were 72 delegates. ठीक है, who attended this party. ये बिल्कुल वैसा ही है कि क्लास जितने लोग अटेंड करते हैं ऑफलाइन क्लास में, वैसे ही ये एक ऑफलाइन क्लास जैसा स्ट्रक्चर था. There were 72 people, ठीक है, 72 delegates and they were coming from different background. इसमें एक का तो बैकग्राउंड सबसे अलग था. AOU, he was not Indian, he was English. तो यहीं पे देखो, the people coming from different background, one is what? AOU, right? He was English. दूसरी बात क्या थी? Which class will attend this first conference? कौन क्लास अटेंड करेगा बताओ? Rural people, commoners will attend, or landed aristocracy? Exactly. इसका मतलब क्या है कि कौन आएगा इस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में? A class of educated Indians. पहली तो क्राइटेरिया ये हो गई कि who attended. So this is what? Class of educated Indians. यही लोग अटेंड करेंगे. इसमें भी ये कौन लोग होंगे? अर्बन इलीट्स होंगे. अर्बन इलीट्स, क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, अर्बन इलीट्स, ठीक है. इनके अंदर लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस थोड़ा ज्यादा था. तो अर्बन इलीट्स में उस समय हाईली एजुकेटेड इंडियंस लाइक लॉयर्स आर देयर, ठीक है ना? इसमें डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, जमींदार. मतलब ऐसा नहीं कि वो जमींदारी का काम करते थे. फॉर एग्जांपल आईएनसी के जितने अर्ली नेशनलिस्ट हैं सब बड़े जमींदार थे, राइट? दे वर सोशल वर्कर आल्सो बट बाय देयर फैमिलीज, ओके, द वेल्थ दे वर पोसेसिंग, वो बिग जमींदार भी थे, ठीक है ना? सो दिस इज द क्लास, ओके. सबसे ज्यादा इसमें लॉयर्स थे. लॉयर्स वेर डोमिनेटिंग. लॉयर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा लॉयर्स थे. गॉट इट? नाउ इफ वी टॉक फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अटेंडीज वेयर ब्राह्मण्स. सबसे ज्यादा कौन थे? ब्राह्मण्स थे. नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट मेजॉरिटी ऑफ द members who attended this conference was Brahmins. So in this social composition, which class was dominating? It was Brahminical class which was dominating. Now I am asking a simple question that was it intentional कि सारे के सारे Brahmins ने ही वो conference attend किया? Was it intentional? Yes or no? It was unintentional. Unintentional. ये intentional नहीं था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में केवल और केवल ब्राह्मण्स का ही पार्टिसिपेशन हो. ये अनइंटेंशनल था. अनइंटेंशनल क्यों था? व्हाट वाज द रीजन दैट इट वाज अनइंटेंशनल? क्यों था? व्हाट कुड बी द रीजन? गेस करो. गेस मार्क. आंसर बताओ. व्हाई ब्राह्मण्स पार्टिसिपेटेड इन लार्जर नंबर्स इन सोशल कंपोजिशन? व्हाई ब्राह्मण्स वर डोमिनेटिंग? व्हाट कुड बी द रीजन? देखो एग्जैक्टली देखो ब्राह्मण्स, देखो सबसे रोहित बिग जमींदार था, ये भी ठीक है, बट सबसे जो शानदार एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? जस्ट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, राइट, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज डोमिनेटेड बाय हूम? ब्राह्मण्स. इन द सोशल हायरार्किकल स्ट्रक्चर हु वर डोमिनेटिंग? ब्राह्मण्स, ठीक है. पढ़ने का एक तरह से एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक राइट्स उन्होंने अपने लिए बना रखा था. सो दिस इज द रीजन, ओके, दैट दे विल डोमिनेट. सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे तो दे विल डोमिनेट आल्सो. ये भी होगा
they will dominate also. We cannot deny this fact. They will dominate. So this is the reason it was not unintentional. Muslims were also there. Third president Badruddin Tayyib ji क्या है? He is Muslim. वो तो मुस्लिम भी है ना, ठीक है ना? So that we need to understand that it is not intentional. ठीक है ना? Now we are coming to one important approach, and then I will discuss some of the most important things with you. That is, when INC was formed, okay, early nationalists. तो देखो, Indian national movement is divided into three parts. Draw the structure first, then I will discuss the concept. तो आप बेहतर relate कर पाओगे. Indian national movement, we can divide the phase of Indian national movement into three parts. हम three parts में इसको divide करके देख सकते हैं. What are these three parts? Okay. So read this. First part is from 1885 to 1905. The second part is from 1905 to 1920. And the third part is from 1920 to 1947. This is a general division of the Indian national movement. Okay. So divide करिए three parts में. There are three parts, right? First part 1885 to 1905. Okay. Second part 1905 to 1920. And the third part is 1920 to 1947. Now here, what I mean to say here is that in this phase, who was dominating Indian National Congress? So read this. This phase of Indian national movement is known as phase of moderate dominion. Read this. This phase of Indian National Congress is known as phase of moderate dominion. This phase is known as phase of extremist dominion. This phase is known as phase of extremist dominion. And we all know that Gandhi will return from South Africa in 1915, and then he will do some regional experiments, Champaran, Ahmedabad, Kheda. Then he will do a national satyagraha, that is Rowlatt Satyagraha, and then non-cooperation movement starts here. Okay, so this third phase is known as Gandhian phase. Read this. This is known as Gandhian phase in Indian national movement. So there are three phases. The phases has been divided into three parts. Okay, moderate dominion, extremist dominion, and Gandhian phase in Indian national movement. ये जानना बहुत जरूरी है. ये phases क्यों बता रहा हूँ? There is a reason. What is the reason? समझो. There is a debate revolving around INC. One is safety valve theory, and the second is lightning conductor theory. But in order to understand that debate, we need to understand two terms, that is moderates and extremists. So first we will learn about moderates and extremists. Then I will discuss with you the debates around Indian National Congress, right? Now, this phase is known as phase of moderate dominion. Write this point. Some points यहाँ पे लिखिए that are very important. Write this. Vision. Here, the vision of Indian National Congress. Vision of Indian National Congress, right? It was very dim or vague or confused. Vision of Indian National Congress. Here the vision is very dim. Here the vision is vague, or we can say that the vision here is confused. यहाँ पे vision क्या है? It's dim, it's vague, it's confused. Okay, write one more point. That in this phase, Indian national movement was confined. In this phase, Indian national movement was confined to a handful of educated middle class. Confined to, okay, handful of educated middle class. First page में लिख रहा है handful of educated middle class. It was confined to the handful of educated middle class. Okay, write one more point. Okay, in this phase, ये first phase है. In this phase, INC only asked for some. In this phase, INC only asked for some constitutional concessions and administrative reforms from the British government. In this phase,
INC only asked for some constitutional concessions and administrative reforms from the British government. INC only asked, okay, right? Constitutional concessions and some administrative reforms from the British government. मेरी बात समझ में? इसका मतलब क्या है? INC asked for Swaraj or not? INC demanded for Swaraj or not? The answer is no. Write this. In this phase, INC did not put demand for Swaraj. इस फेज में INC ने स्वराज की मांग नहीं रखी. In this phase, INC did not put demand or did not raise demand for Swaraj. INC did not raise demand for Swaraj. अच्छा, अगर INC स्वराज की डिमांड नहीं रख रही है, इसका मतलब क्या है? क्या INC इस बात में बिलीव करती है इस फेज में कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के रहने से हिंदुस्तान का भला हो सकता है? यस, तभी तो आप स्वराज नहीं मांग रहे हो, राइट? This is the simple meaning, okay? Right? It means that in this phase, INC believes this means that in this phase, INC believes that इस phase में INC ये मानती है कि INC believes that, okay, British rule in India is for the betterment of Indians. British rule in India is for the betterment of Indians, and they also believe in civilizing mission of British. And they also believe, here the leaders also believe in civilizing mission claim of British. Civilizing mission claim of British. पहले फेज में ये आउटलुक है इंडियन नेशनल कांग्रेस का. दे ऑल्सो बिलीव इन सिविलाइजिंग मिशन क्लेम ऑफ ब्रिटिश. इसका मतलब क्या है कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में रहेंगे, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होगा, इंडियंस को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलेगा, तो इंडियंस को एक तरह से ट्रेनिंग मिल जाएगी, पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिल जाएगी देश चलाने की. और ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग किसके अंदर रह के मिले तो ज्यादा बेटर है? ब्रिटिश रूल के अंदर. क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं? बिकॉज दे थिंक दैट ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश इन इंडिया आर एक्सपर्ट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लिबरल आइडियाज, उनको ज्यादा बेहतर अनुभव है, उनसे हम सीख सकते हैं और ब्रिटिश के अंदर हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, ठीक है, और जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा, आजादी बजादी. मेरी बात समझ गया ना? ये ऑब्जेक्टिव है. ओके, सो राइट वन मोर पॉइंट, राइट? They write this. In this phase, early nationalists believed that they will get political training under the British. In this phase, INC leaders believed that they will get political training under British. They will get political training under British. वो ब्रिटिश के सबॉर्डिनेट रह के क्या करेंगे? पॉलिटिकल ट्रेनिंग उनको मिलेगी, ठीक है. तो डिमांड्स कैसी होंगी? विच काइंड ऑफ डिमांड्स will be raised by INC in this early stage? Okay, so write this demands raised by INC in the first phase. उससे हमें और एक बेहतर आइडिया लगेगा कि INC का आउटलुक कैसा था. डिमांड्स रेज्ड बाय INC इन द फर्स्ट फेज. INC ने किस तरह के डिमांड्स रेज किए? राइट, पॉइंट 1, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इन ICS. Equal opportunity for Indians in ICS. Equal opportunity for Indians in ICS. Got it? इंडियन सिविल सर्विस में इंडियंस को क्या हो? इक्वल अपॉर्चुनिटी. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इन ICS. इसका फायदा किसको मिलेगा? बताओ. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इन ICS. सेकेंड पॉइंट, राइट दिस. ओके, गिविंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू इंडियंस. किसको फायदा मिलेगा? गिविंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू इंडियंस. Giving political participation to Indians. Okay. Right, third point, extension of rule of law. Third point is extension of rule of law. Third point is extension of rule of law. Extension of rule of law. ठीक है. Fourth point is, right, emphasis on individual liberties. इसकी भी मांग की जाएगी. Emphasis on individual liberties.
emphasis on individual liberties. Emphasis on individual liberties. Okay. Right. Next point. Okay. INC will also raise the issue of exploitation or colonial exploitation. INC will also raise the issue of colonial exploitation. Issue of colonial exploitation, and will ask the British government to bring reforms in the life and conditions of Indian people, and will also ask British government to bring reforms in the lives and conditions of Indian people. वो इस बात की भी मांग करेंगे कि आप क्या करो, इंडियन पीपल की लाइफ और कंडीशंस में रिफॉर्म करो. ठीक है ना. दिस इज द पॉइंट. अब आप ये बताओ कि when you are just putting when you believe in civilizing mission concept of INC, sorry, British government, when you believe that under this British government, okay, चीजें बेहतर होंगी, in this situation आपका टोन क्या होगा, क्या होगा आपका टोन? मॉडरेट. ओके. आपका पोलाइट. ठीक है ना. तो मॉडरेट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. सेकेंड फेज में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, देन वी विल कम टू दिस मॉडरेट पार्ट. सेकेंड फेज, राइट दिस 1905 टू 1920. कहीं कहीं पे 1918 भी लिखा रहता है, तो इससे परेशान नहीं होना. ठीक है ना. तो हिस्टोरियंस ने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया है. अब यहाँ पे क्या है, रेड दिस 1905 1906. 1906, देखिए व्हाट हैपेंड, राइट. स्वराज वाज डिस्कस्ड ऑन द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ आईएनसी. यहाँ पे डिस्कस हुआ, आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी घबराना नहीं है. ठीक है. स्वराज वाज डिस्कस 1905 सेशन अभी बताया था. लिस्ट जो आपने अभी अभी लिखी है, बनारस सेशन गोपाल कृष्ण गोखले, वहां पे क्या हुआ, स्वराज वाज डिस्कस्ड. पहली बार स्वराज का मुद्दा डिस्कस हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे 1905 में. ये बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है. 1906, राइट दिस, राइट. 1906 demand for Swaraj was raised for the first time. पहली बार यहाँ पे क्या किया गया, demand for Swaraj was raised for the first time. Demand for Swaraj, it is also written as attainment for Swaraj. थोड़ा और अच्छी इंग्लिश में लिखना चाहो तो डिमांड फॉर स्वराज वाज रेज्ड. जितना सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हो उतना करना. ठीक है ना. ये बात मेरी हमेशा याद रखो, जितना कम्युनिकेट करने वाला वर्ड है वही लिखने में यूज करना है. इट्स नॉट एकेडमिक्स, ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है ना. उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है. डिमांड फॉर स्वराज. अच्छा देखो, इस फेज में देयर इज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट. कोई बताएगा कौन सा मूवमेंट है? विच मूवमेंट इन दिस फेज? एनी वन ऑफ यू? Swadeshi movement. Very good. Read this. Swadeshi movement. This is an important movement in this phase. Swadeshi movement 1905 to 1908. ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1908. ठीक है. स्वदेशी मूवमेंट. और स्वदेशी मूवमेंट में डिमांड क्या है? स्वराज. डिमांड फॉर स्वराज वाज रेज्ड. ठीक है. सो व्हाई दिस फेज इज इंपॉर्टेंट? This phase is important because in this phase we raised the demand for Swaraj. स्वदेशी में हम क्या कर रहे थे? We were promoting the idea of indigenous goods. कि लोगों को अपने देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए. Plus we were also using a strategy of boycott, passive resistance, burning of foreign clothes, picketing of liquor shops. बताओ हम मॉडरेट रह गए क्या? थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है हमारे अंदर. मेरी बात समझ गया ना? राइट. हाँ, बताऊंगा. नहीं नहीं, अभी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, सारी चीजें पता चलेंगी. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है. पूर्ण स्वराज बाद में आएगा. ठीक है ना. अभी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो सीडीएम के टाइम आएगा. राइट. ओके. सो राइट, स्वराज और सेल्फ रूल, इसकी बात हमने की. ओके. अच्छा, इसी मूवमेंट, इसी फेज में एक और मूवमेंट है, दैट इज नोन एज HRL मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट. अभी परेशान मत होना, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट वी आर मेकिंग एन आउटलाइन, फिर इसके अंदर हम एंटर करेंगे टॉपिक के अंदर. तो राइट, सेकेंड फेज में देयर इज अनदर मूवमेंट इन सेकेंड फेज. सेकेंड फेज यही था ना, 1905 टू 1918 1920.
HRL, write this, होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट। और यहाँ पे डिमांड क्या है, अगेन होम रूल, होम रूल, होम रूल का डिमांड इज रिलेटेड टू व्हाट, स्वराज। ये भी डिमांड कैसा है, होम रूल, स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। इन जनरल वर्ड्स वी कैन से इट इज व्हाट, स्वराज, और इट इज व्हाट, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मतलब हमारी डिमांड्स जो है धीरे धीरे रेडिकल होती चली गई, ठीक है ना। बट जब हम थर्ड फेज में आते हैं, थर्ड फेज में व्हाट वी सी दैट गांधीज एंट्री इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1915 में वापस आते हैं, एंड देन रीजनल एक्सपेरिमेंट्स इन चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918, देन नेशनल इशू ही एड्रेस्ड वाज राउलेट सत्याग्रह, ठीक है। ही आल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी to associated with Khilafat movement, and finally Gandhi started an all India, right, 1920 is the year when Gandhi started NCM non cooperation movement, ये चलेगा 1920 से 22 तक। असहयोग आंदोलन 1922, आप सब लोगों को पता होगा 1920 to 1922 there is non cooperation movement, असहयोग आंदोलन, and it was India's first great mass movement under the leadership of Gandhi. It was Gandhian first great mass movement. Okay, so this is what first great mass movement in India. ठीक है, और गांधी का ये मूवमेंट है। अब इसमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, स्वराज विद इन 1 ईयर, स्वराज विद इन 1 ईयर, स्वराज विद इन 1 ईयर, ध्यान रखो। अब रेडिकल होते जा रहे हो, पहले आप पापा से कह रहे थे पापा साइकिल चाहिए, फिर आप कह रहे हो पापा 2 दिन के अंदर साइकिल चाहिए, इसका मतलब क्या है, डिमांड्स बिकमिंग मोर रेडिकल। मेरी बात समझ गया ना। सो हियर गांधी रेज द डिमांड, एंड व्हाट इज द डिमांड, स्वराज विद इन 1 ईयर। मिला नहीं वो अलग बात है, ठीक है, पापा से बस डिमांड करनी है, मिला नहीं वो अलग बात है, तो स्वराज विद इन 1 ईयर। अच्छा, इसी फेज में इन द थर्ड फेज वी सी अनदर मूवमेंट, थर्ड फेज में दूसरा मूवमेंट है, एंड दैट इज व्हाट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। And in civil disobedience movement, what was our political objective, so it is what, complete, complete और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, ठीक है। पहले हम स्वराज मांग रहे थे, अब हम क्या कह रहे थे, पूर्ण स्वराज, मीनिंग आई विल डिस्कस लेटर, है ना। पूर्ण स्वराज ज्यादा खतरनाक मांगे, इट इज अ मोर रेडिकल डिमांड देन स्वराज, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्वराज एंड पूर्ण स्वराज, आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। और इसी फेज में, इन द सेम फेज, देयर इज अ थर्ड मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पे हमारा स्लोगन क्या था, अंग्रेजों को हम क्या कह रहे थे, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। तो दिस ऑल हैपेंड इन द थर्ड फेज। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स कहाँ है, थर्ड फेज में। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट है, बट इन सारे फेज में why we are calling this phase as the phase of extremism, इसको हम सेकेंड फेज को फेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म क्यों कह रहे थे, इसके पीछे एक रीजन है, एंड व्हाट इज द रीजन why we are calling second phase as the phase of extremism। सेकेंड फेज के नीचे लिखना आप उसी नोट्स में, हाँ, सेकेंड फेज के नीचे आप लिखोगे, देखो INC 1907 सूरत सेशन, केवल हिंट लिखो, आगे डिटेल में बताऊंगा। 1907 सूरत सेशन, और यहाँ पे क्या होता है, सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट होता है, ठीक है। इस स्प्लिट से क्या होता है कि जो मॉडरेट ग्रुप था, मॉडरेट ग्रुप, दिस मॉडरेट ग्रुप विल रिमेन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट disciplinary action will be taken against extremists, disciplinary action was taken against extremists, and now extremists were out of Indian National Congress। अब एक्सट्रीमिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर हो गए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नाउ एक्सट्रीमिस्ट आर आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। देखो, मॉडरेट जब ज्यादा रेडिकल होगा तो क्या बनेगा, एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट थोड़ा और रेडिकल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिवॉल्यूशनरी। गॉट इट, ओके। मॉडरेट व्हेन दे विल बिकम रेडिकल, ठीक है, दिस इज व्हाट, extremists। For example, you are asking, okay, your parents, your father, that पापा मुझे एक साइकिल चाहिए, पापा ने कहा ठीक है दिला देंगे, क्लास 10th के बाद दिला देंगे,
आपने वेट किया, क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाए, पापा ने साइकिल नहीं दिलाई। आपने फिर से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, पापा आपने प्रॉमिस किया था आप साइकिल दिलाओगे, आपने नहीं दिलाया। पापा ने कहा बेटा 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाओ, जरूर दिला दूंगा। आपने कहा ठीक है। आपने फिर से पढ़ाई की, फिर से अच्छे मार्क्स लाए, अच्छा ग्रेड लाया, बट 12th क्लास में फिर आपके पापा ने साइकिल नहीं दिलाई। अब आपका अप्रोच क्या होगा? थोड़ा रेडिकल होगा, ठीक है। अब आप कहोगे पापा मुझे अब चाहिए बाइक, ठीक है। पापा फिर भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। फिर आप किस दिन कहते हो बाइक नहीं दिलाओगे, ठीक है। आप भी अपनी बाइक से ऑफिस जाते हो, आप जाके दिखाओ बाइक से, ठीक है। फिर सुबह आपके पापा जब ऑफिस के लिए निकलते हैं, पता चला आपने बाइक का टायर पंचर कर दिया, ठीक है। यानी अब अपने डिमांड को कैसे आप रेस कर रहे हो? थोड़ा और रेडिकल तरीके से, कि मैं बाइक पे नहीं चलूंगा तो आप भी बाइक पे नहीं चलोगे। ये क्या हो गया? रेडिकल हो गया। तो रेडिकल वर्ड जो है ना, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से यूज होता है। व्हेन योर डिमांड्स बिकम मोर रेडिकल, यू आर द सेम पर्सन बट नाउ योर डिमांड इज मोर रेडिकल। साइकिल बाइक नहीं दिलवाओगे तो आपको भी मैं बाइक से नहीं जाने दूंगा ऑफिस, ठीक है। और आपने क्या किया? किसी के साथ मारपीट लड़ाई नहीं करी, बस टायर पंचर किया, बस इतना काम किया। तो योर डिमांड इज मोर रेडिकल ना, ठीक है। ऐसे ही जब आप थोड़े और रेडिकल हो जाओगे, ठीक है, तो क्या करोगे? जैसे व्हेन एक्सट्रीमिस्ट विल बिकम रेडिकल, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का कुछ ग्रुप ऐसा होगा जो और ज्यादा रेडिकल हो जाएगा। वो ज्यादा रेडिकल हो जाएगा तो एक हाथ में पिस्टल ले लेगा, दूसरे में बॉम्ब ले लेगा, कहेगा आप बताओ, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाट? रिवॉल्यूशनरी, ठीक है ना। तो ये रेडिकलिज्म का फर्क है। व्हेन योर डिमांड्स विल नॉट बी एड्रेस्ड प्रॉपरली, if you are putting your demands in a moderate manner, right, peaceful manner, and when the person with whom you are putting your demands, if he is insensitive to your demand, तो पेशेंस की भी एक हद होती है ना। 1885 से 1905, 20 years have passed and British were not sensitive to our Indian demands. तो सेकेंड फेज में तो एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा पॉपुलर होंगे ही। तो देखो क्या होता है, सूरत स्प्लिट के बाद एक्सट्रीमिस्ट आर आउट एंड नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट विल डू व्हाट? British government will take repressive measures against this extremist. British government will take repressive measures against this extremist. इनका दमन करेगी, right? Forceful suppression. और क्या होगा कि this extremism now will turn into revolutionary activities. Revolutionary activities मतलब ये है एक्सट्रीमिस्ट, एक हाथ में अब इसके क्या आ गया? पिस्टल, और दूसरे हाथ में क्या आ गया? बॉम्ब। हो गया रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। तो ये फेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो 1908 टू 1919, ओके, दिस इज नोन एज फर्स्ट फेज। इसको ऐसे लिख लेना, 1907 टू 08, दिस इज नोन एज फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। यहाँ पे ये है फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, ठीक है। और एक सेकेंड फेज भी है, दैट इज आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ एनसीए, ठीक है ना। तो दैट आई विल डिस्कस, ओके, वो आगे डिस्कस करूंगा, अभी बस एग्जांपल में ही लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इतनी बात आपको समझ में आई? फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। थ्री फेजेस में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि our demands will become more radical. British government will not properly address to our demands, and as a result, what will happen? Our demands will start becoming radical. Now we need to understand two words, then I will enter into debate. One is, all right, moderate, and the second is extremist. Okay, तो ऐसे एक चार्ट बना लो, on one side write moderates and on other side write extremists. Moderates and extremists. Now we need to understand about these two groups, moderates and extremists, ठीक है ना। Now first I will discuss the meaning of Swaraj for both. दोनों के लिए क्या मीनिंग है स्वराज? So write this point one. Meaning of Swaraj for moderates. What is the meaning of Swaraj for moderates? Meaning of Swaraj for moderates. क्या है moderates के लिए meaning of Swaraj? This we need to understand. And this is very clear. Moderates के लिए क्या definition है? तो देखो, फर्स्ट फेज में कौन डोमिनेट कर रहा है? फर्स्ट फेज ऑफ आईएनसी, हु इज डोमिनेटिंग? moderates. Okay, you all know the development here. Now what is the definition? Definition is very clear. They say that, suppose, look at this structure, right? Suppose this is umbrella,
अम्ब्रेला ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है ना, एंड दिस इज व्हाट इंडियंस। तो इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि वी एक्सेप्ट द कॉलोनियल रूल, we accept the umbrella of colonial rule, we accept the guidance and patronage of Britishers, right? And we demand self government under this colonial rule. मेरी बात समझ गया ना? It means Indians are demanding here self government, right? This Indians are demanding self government under British rule, under British rule, मतलब ब्रिटिश रूल वाली छतरी हम पकड़े रहे। अंडर ब्रिटिश रूल वी डिमांड व्हाट? सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, यानी कि यू विल गिव अपॉर्चुनिटी टू इंडियंस, you will give political participation to Indians, okay, we will get political training from you, we will learn from you, and under your guidance we will do what? Okay, under your guidance here, okay, we demand self government or self, इसी डिमांड को समझ सकते हो, दे आर आस्किंग टू इंक्रीज द इंडियन, टू इंक्रीज द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है, in governor general councils, legislative councils, they are asking that Indian members को बढ़ा लाया जाए वहां, और काउंसिल का स्ट्रक्चर एक्सपैंड किया जाए, they will say Indianization of services किया जाए, but they are not saying no to British, ठीक है, this is the definition of Swaraj for the moderates, ठीक है। Now what about the extremists? Okay, what is the meaning of self rule for the extremists? Extremists are saying that self rule, okay, without the guidance of British, यानी ये हमें छतरी नहीं चाहिए, we don't need, right, the guidance of British, हमें ब्रिटिश की गाइडेंस नहीं चाहिए, we don't need guidance of British, we don't need political training from British, डेमोक्रेसी हमें अंग्रेजों से सीखने की जरूरत थोड़ी ना है, एंशिएंट इंडिया पढ़ो, वैदिक पीरियड पढ़ो, सभा समिति विदत गण पढ़ो, ठीक है, रिपब्लिक्स पढ़ो, 16 रिपब्लिक्स मेंशन्ड इन अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कहा में अंग्रेजों से ये रिपब्लिक रिपब्लिक सीखने की जरूरत नहीं है, हम बहुत महान लोग हैं, चोला पीरियड में जाके देखो, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम, विलेज डिसेंट्रलाइजेशन, विजयनगर एम्पायर, आयगार सिस्टम देखो, का इतना कुछ तो है हमारे इंडियन कल्चर में, हमें इनसे सीखने की जरूरत थोड़ी ना है, वी डोंट वांट पॉलिटिकल ट्रेनिंग फ्रॉम द ब्रिटिश, हमारे लिए सेल्फ रूल का मतलब क्या है? The entire political administration, the entire system of administration will be maintained by the Indians without the need and guidance of British. हमें British rule, colonial rule नहीं चाहिए. We want what? Full independence. Okay? We want to maintain our national affairs without any foreign interference. We want complete freedom from British rule. This is the definition of Swaraj for the extremists. Right? This definition is what? Complete. Right? This. Complete freedom from British rule. इनके लिए ये मतलब है. Complete freedom from British rule. यहाँ क्या था? Guidance and support of British rule. Moderates के लिए क्या था? Guidance and support of British rule. Extremists के लिए क्या है? Complete freedom from British rule. Got it? Right? यहाँ पे क्या है? Full independence to maintain national political and administrative affairs. Full independence to maintain, full independence to maintain national political and administrative affairs. हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, हमें कोई ब्रिटिश का गाइडेंस नहीं चाहिए. Full independence to maintain national political and administrative affairs. यहाँ क्या था? फुल इंडिपेंडेंस था कि हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश टू मेंटेन नेशनल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स. इन दिस पार्ट व्हाट वाज दैट? हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इन मेंटेनिंग नेशनल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स. तो अब आप समझ पाए, मॉडरेट्स अम्ब्रेला लेके चलते ब्रिटिश रूल का, एक्सट्रीमिस्ट कहते हटाओ इसको, स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस. हु बिलीव इन सिविलाइजिंग मिशन क्लेम ऑफ ब्रिटिश? Moderate. Who believe that British rule in India is a boon, vardhan? Moderates. Who don't believe in civilizing mission claim of the British? Extremists. ठीक है, अब आप ये बताओ कि when you believe in this definition of Swaraj, okay, so moderates and extremists, the second point, what will be your method? What will be your method? If you believe in this definition of Swaraj, so the method is 3P. The method of moderates is what? 3P. 3P का मतलब क्या है? Prayer,
Next, P means what? Petitions. Writing petitions, applications. Okay. पहले हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, भाई साहब हमारी परेशानी सुन लो, नहीं माने तो फिर एप्लीकेशन लिखो, मेल करो, उससे भी नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट कैसा होगा? पीसफुल. Okay, so third is what? Protest. But here protest will be peaceful, legitimate. Okay, peaceful protest. Got it? That is the method. 3P. अच्छा, इनका मेथड क्या होगा भाई? एक्सट्रीमिस्ट का मेथड क्या होगा? 3S. Right, 3S. And what is 3S? Read this. Self-reliance. Self-reliance. Second S means what? Self-sacrifice. Self-sacrifice. Third S means what? Strong will. Third S means what? Strong will. So self-reliance, self-sacrifice, and strong will. Got it? This is the 3S. Self-reliance, self-sacrifice, and strong will. समझ में आ रहा है आपको? अब इस बात का मतलब कैसे समझेंगे? सेल्फ-रिलायंस. हिंदुस्तान गुलाम कैसे बना? British came here as traders. Trading company ruled India from 1757 to 1857. 100 years, a trading company ruled. So why British are present in India? अंग्रेज हिंदुस्तान में है क्यों? For economic exploitation of India. There is British rule, but the British rule in India is promoting the economic interest and commercial interest of the British industrialization. They are in India to increase the British exports. वो भारत में है ताकि ब्रिटेन के एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, ब्रिटेन के इनकम को बढ़ा सके, इसलिए वो भारत में. और अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से क्या किया? ब्रिटिश डिड व्हाट वेरी स्ट्रेटेजिकली, दे इंश्योर्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट. ठीक है, ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी को क्या बना दिया? मैन्युफैक्चर सॉरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. पहले तो ऐसा नहीं था. वी वेर द एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स. अब हम क्या बन चुके हैं? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. और हम क्या खरीदने लगे हैं? फॉरेन क्लॉथ्स. वेस्टर्नाइजेशन हुआ है. ओके, सेल्फ सफिशिएंट नेचर ऑफ विलेज इकोनॉमी हैज बीन लॉस्ट. सेल्फ सफिशिएंट नेचर ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी हैज बीन लॉस्ट. Now Indians are dependent on manufactured goods of Britain. They are cheaper and that's why we are attracted to them. वो सस्ते भी हैं. मशीन से बनी हुई चीजें सस्ती होती हैं. Got it? Self-reliance means what? We people will start using Indian goods, Indian indigenous goods. Got it? Okay. We people will start developing Indian schools. इससे हम क्या बनेंगे? सेल्फ रिलायंस. डोमेस्टिक डिमांड्स विल बी जनरेटेड, तो इससे हमारी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी? ग्रो करेंगी. वी विल बायकॉट व्हाट? फॉरेन क्लॉथ्स. वी विल बायकॉट व्हाट? लीकर. इन दिस वे द ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स विल कम डाउन एंड इंडियन डिमांड्स विल इंक्रीज. और जैसे ही ये डिमांड बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी फिर से. और ब्रिटिश को जैसे ही लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, ब्रिटिश ये देश छोड़ के चले जाएंगे. दैट इज द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस. आत्मनिर्भरता वो लाने की जरूरत है. दिस इज द आइडिया ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. द सेकेंड पॉइंट व्हाट दे आर सेइंग, सेल्फ सैक्रिफाइस. व्हाट इज सेल्फ सैक्रिफाइस? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में बनी हुई शर्ट की कीमत अगर 500 रुपीज है और इंडिया में हैंडीक्राफ्ट चरखा से बने हुए शर्ट की कीमत अगर 2500 रुपीज है, तो आप किस शर्ट को खरीदोगे? 2500 रुपीज में बनी हुई शर्ट को खरीदोगे. ठीक है, 500 रुपए की सस्ती चीज को छोड़ के 2500 रुपीज की कॉस्टली शर्ट को अगर आप खरीद रहे हो, ये भी तो एक सेल्फ सेक्रीफाइस है. बलिदान सिर्फ सर कटाना नहीं होता है, ये भी एक बलिदान है. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इंडियंस को. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. दे विल से दैट वी आर आल्सो रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ नेशन. इफ यू विल आस्क एक्सट्रीमिस्ट दैट द इंडिजिनस फूड्स इज वेरी एक्सपेंसिव, मैं इसको कैसे खरीद सकता हूं, देन एक्सट्रीमिस्ट विल से दैट बहुत एक्सपेंसिव है, आप मैं शर्ट नहीं खरीद पा रहे हो. नो, तो कोई बात नहीं, आप खुद से शर्ट बना लो, सीख लो,
चरखा ले लो और उस पे क्या करो, सूत काटो और अपने लिए शर्ट बनाओ, ठीक है। यही आइडिया तो था। Why चरखा was the symbol of Indian national movement? Because चरखा was the symbol that indicates that Indians were determined to promote the idea of self reliance. चरखा symbol है self reliance का, चरखा is the symbol of self sacrifice, and all these things need what? Strong will. Strong will चाहिए कि नहीं? Yes. Fighting colonial rule, you need what? Strong will. If you will reject colonial rule, okay, so this might be possible that official suppression methods of operation repression will be done, and you will have to ready to accept the tortures that will be done by this colonial rule. आपको वो अन्याय अत्याचार सहने के लिए क्या करना होगा? तैयार रहना होगा. Okay, that is one idea. Now, third point, moderates or extremists, right? Third important point. One side moderate, other side right extremist. Third point is what? देखो, moderate leaders are mainly from which part? Mainly they are educated intelligentsia, right? They are urban elite class, urban elites. So they are confined mainly in urban areas. They are confined mainly in urban areas. ये ज्यादा urban areas में ही confined. They are confined mainly in urban areas. Got it? They are confined mainly in urban areas. Are they connected at the grassroots level? क्या ये grassroots level से connected है? Yes or no? No, right? It means that they are not popular among the masses. They are confined only to the urban areas, right? They were not popular among the masses. They were not popular among the masses. Okay. Confined only in urban areas. Mainly zamindar class, upper middle class, यही लोग हैं, right? zamindar class, upper middle class, ये लोग. And in first phase, who was dominating Indian National Congress? This class was dominating Indian National Congress. ठीक है ना? Read this first phase. In first phase, they were dominating INC. वो INC को dominate कर रहे थे. They were not popular. What about extremists? Extremist leaders, yes, some of them are also from educated and urban elites, but extremist leaders are, right, this more connected with the masses. They are popular at the grassroots level. Village linkages, गांव के लोगों के साथ जुड़ाव है, right? They use vernaculars to speak. Vernaculars, देखो vernaculars का बहुत बड़ा impact होता है, ठीक है, बहुत बड़ा impact होता है. अगर एक लीडर लोगों से कनेक्ट करना चाहता है और वो वर्नाक्युलर्स यूज करे, सो ही विल बिकम अ पॉपुलर लीडर एंड द मास लीडर. ओके, लुक एट आवर करंट प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रीवियस वन. ठीक है, आप कंपेयर करके देखो कि जैसे ही आप वर्नाक्युलर्स का इफेक्टिव यूज करते हो, यू विल गेट पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस. दिस हैपेंस. ठीक है, तो दे आर मोर कनेक्टेड विद द विलेज पीपल, दे आर मोर कनेक्टेड एट द ग्रास रूट लेवल. ओके, और इसके पीछे एक रीजन है. वो रीजन क्या है? बहुत ध्यान से साइकोलॉजी समझो. सपोज आकाश इज अ मॉडरेट लीडर, ठीक है, एंड आई एम अ कॉमन विलेजर. ठीक है, I am paying land revenue to an agent, and that revenue go to the British officials. Now, I was unable to pay my land revenue for the last 4 months, 5 months, 6 months. Now the agents, Latials, are coming at my home along with the British officials. Okay? And they are asking me, you are not paying your rent. I said that no, I am not able to pay due to some problems at my home. Now they will do what? They will brutally torture me. They will beat me. And they will go back. Now Akash will come and Akash will ask, what happened? I will say that British officials came, okay, along with their Latials, and they brutally tortured me because I was not able to pay the land revenue on time. Akash will say that this is a very serious offense committed by the British officials, and I will raise this issue on the platform of Indian National Congress, and we will ask the British government that why their officials are brutally suppressing Indian masses in the name of collection of land revenue. So they will have to change their method. This will not be accepted. This is the statement of Akash. Now suppose Shatakshi is an extremist leader. She comes at my home and she says, what happened? I told that British officials came, they brutally tortured me. Okay,
आई वॉज नॉट एबल टू पे द लैंड रेवेन्यू। शताक्षी विल से कितनी देर पहले निकले हैं यहां से, पहचान लोगे आप? मतलब समझ गए? ठीक है, कितनी देर पहले निकले हैं, किस रास्ते से गए हैं अभी, पहचान लोगे आप? चलो हमारे साथ, फैसला ऑन द स्पॉट। ठीक है, कौन ज्यादा पॉपुलर होगा बताओ? हु विल बी पॉपुलर अमॉन्ग द विलेजर्स, अमॉन्ग द कॉमनर्स? एग्जैक्टली। तो साइकोलॉजी को समझो, गॉट इट? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आर more popular, okay, more connected at grassroots level, and they are expert in, right, this, they are expert in mass mobilizing programs, they're expert in mass mobilizing programs। इसका मतलब 1885 के बाद जो कांग्रेस की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ी है, वो किसकी वजह से बढ़ी है? मॉडरेट लीडर्स की वजह से कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की वजह से? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। नहीं नहीं, गांधी तो आएंगे अभी बाद में, शुरू के फर्स्ट पेज में बात कर रहा हूं। The ANC popularity that was constantly increasing was a result of this group of leaders, extremist leaders, okay, because they were expert in mass mobilization program। जैसे मान लो कि मैं अगर सोचूं, मैं पता चले दिल्ली में रह रहा हूं मैं पिछले 10 साल से, ठीक है, और मैं सोचूं कि मुझे कुछ पॉलिटिक्स करनी है, मैं गांव गांव की तरफ चलता हूं, तो मैं मास मोबिलाइजेशन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास तमाम अच्छे आइडियाज हैं, मैं स्पीच देके विलेजर्स को कन्विंस कर सकता हूँ, बट मेरे सामने 100 200 लोग, 1000 लोग इकट्ठा होंगे तब तो स्पीच दूंगा। ठीक है, देखो मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, ठीक है, बट अभी मास कॉन्टेक्ट नहीं, समझो इसी बात को, ठीक है ना। आई नो दैट व्हाट आई एम डिलीवरिंग इज एक्सीलेंट, बट स्टिल आई एम नॉट कनेक्टेड विद द मासेस, सो इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द मासेस। तो वो मासेस को कौन लेके आ रहा है? आईएनसी के बड़े लीडर स्पीच देने जा रहे हैं, लेकिन हजारों की भीड़ कौन इकट्ठी कर रहा है? किसके दम पे वो भीड़ इकट्ठी हो रही है? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के दम पे। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आर a factor that you can say that they contributed in the growth of popularity of Indian National Congress। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को इन्होंने बढ़ाया। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडरेट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडरेट। अच्छा देखो, moderate leaders are educated people, so they will draw inspiration from Montesquieu, Locke, Rousseau, Renaissance, Age of Enlightenment, French Revolution, ठीक है, मैजिनी, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, इनको पढ़ रहे हैं ये। गांव का लोग मैजिनी गैरिबाल्डी को जानता है क्या? नहीं। एक आम गांव का जो आदमी है, मैं कल एक टिकटॉक वीडियो या कुछ ऐसा वायरल कुछ था तो देख रहा था, तो उसमें एक विलेजर था, एंड दैट विलेजर वाज इन द ड्रेस ऑफ गांधी, नॉट इंटेंशनली, अनइंटेंशनली। आज भी महाराष्ट्र में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, पीपल वियरिंग खादी क्लॉथ्स, वाइट क्लॉथ्स, वो टर्बन, वो गमछा लिए हुए, वो मतलब सूती कपड़े पहने हुए, सादा चप्पल पहने हुए, वो दिख जाएंगे आपको। ओके, दे विल लुक लाइक आवर फ्रीडम फाइटर्स, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, सोचो ये लीगेसी है जो कंटिन्यू हो रही है, हम लोगों का रंग ढंग बदल गया है वो अलग बात है, बट यू विल फाइंड द पीपल, द ओल्डर एज पीपल, दे स्टिल लुक लाइक द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, वो आज भी दिखते हैं। तो सबसे बड़ा एक रीजन क्या है? इंस्पिरेशन। नाउ दीज एजुकेटेड इंडियन क्लास, उनको लगेगा कि इंडिया में वी हैव टू प्रमोट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी लाने की जरूरत है, लिबर्टी, इक्वलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर्स लाने की जरूरत है। सो दे आर गेटिंग मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वेस्टर्न रिवॉल्यूशंस, प्रोग्रेसिव रिवॉल्यूशंस इन द वर्ल्ड। और ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है, दिस इज गुड। बट व्हाट अबाउट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स? मॉडरेट लीडर्स डेमोक्रेसी किससे पढ़ रहा है? वेस्टर्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी क्या हुआ है? व्हाट अबाउट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स? सभा समिति, विदत, गण, रिपब्लिक्स, चोला पीरियड, वो इनकी बात करते हैं। दे आर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके सामने जहां आपने लॉक की बात की, मॉन्टेस्क्यू की बात की, तो आपको भगा देंगे, भाग जाओ यहां से, पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ के आओ। ठीक है, तो ये भी एक फर्क है। ठीक है, तो पैट्रियटिज्म जो है ना, वो ज्यादा इंटेंस है इनके अंदर। मेरी बात समझ गया ना? ये क्या है? दीज पीपल, मॉडरेट्स आर लाइक माइंड एंड एक्सट्रीमिस्ट आर लाइक हार्ट ऑफ अ बॉडी। और दोनों जरूरी है बॉडी के ठीक ठाक फंक्शनिंग के लिए। ये भी गड़बड़ हो गया तो भी आपको जाना पड़ेगा पागल खाने। ठीक है, और ये गड़बड़ हो गया तो फिर दूसरे लोक में पहुंचा देगा, राइट। सो फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बोथ दीज टू थिंग्स आर नीडेड, mind as well as heart. So mind, moderates are like mind, extremists are like heart. तो दोनों का अपना एक इंपॉर्टेंस है, राइट दिस पॉइंट। moderates drew inspiration, moderates
drew inspiration from Western political thoughts. Moderates drew inspiration from Western political thoughts, progressive movements in the West, Western political thoughts, progressive movements in the West, Western literature, Western literature mainly. आई एम राइटिंग या मेनली, ऐसा नहीं है कि वो इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ते, वो इंडिया की हिस्ट्री के साथ साथ ये भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है. So they are also familiar with Indian history, but along with this Indian history, they are deriving, okay, the motivation and inspiration from this Western political thought. जैसे आप बोलो इंडिया में डेमोक्रेसी था 600-300 BC पीरियड में, ठीक है. वेस्टर्न थिंकर्स कहेंगे, सारे थिंकर्स इंटरनेशनल लेवल के लोग कहेंगे भैया ये किस पैरामीटर पे डेमोक्रेसी था, व्हाट इज योर पैरामीटर दैट यू आर सेइंग दैट देयर वाज डेमोक्रेसी, ओके. They will say that these are the parameters, now evaluate that there was democracy or not. So you will say that अपना पैरामीटर अपने घर ले जाओ. We have self formulated parameters and standards, वो पैरामीटर हमने खुद ही बनाया है और उसी के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी था. तो बात ये है कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं किसी चीज को डिफाइन करने के. गॉट इट? हैव यू गॉट दिस आइडिया? राइट. द सेकंड पॉइंट हियर, extremists, right? Extremists drew inspiration mainly from the glorious Indian history, past of India, Indian personalities. Extremists drew inspiration from, okay, glorious history, past inspirations, past events. जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, simply rediscovery of India's past, Orientalism. Read this. Rediscovery of India's past, Orientalism, Dayanand Saraswati, Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekananda, etc. Right? Rediscovery of India's past, Orientalism, Dayanand Saraswati, Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramhans, etc. etc. ठीक है ना. तो यहाँ पे इंडिकेट कर लेना, दिस इज लाइक माइंड एंड दिस इज लाइक हर्ट. इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, माइंड. इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, हार्ट. तो दोनों चीजें जरूरी हैं. तो एक्सट्रीमिज्म क्या है, राइट दिस वर्ड, दिस इज लाइक इमोशनली चार्ज्ड नेशनलिज्म. एक्सट्रीमिज्म इज व्हाट, इट इज लाइक इमोशनली चार्ज्ड नेशनलिज्म. ठीक है ना. एक्सट्रीमिज्म एक तरह से क्या है, इट इज इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म. ठीक है, इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म. एग्जैक्टली. देखो क्या है, पहली चीज मैंने पहले ही कहा था कि एक सिंथेसिस बड़ा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, when you look at your syllabus of history, केवल हिस्ट्री के सिलेबस पे चले जाओ. On one side we read art and culture also, on one side we read world history also. ध्यान से समझना. In AMC we read ancient history also and we read medieval history also. Medieval history में हिस्ट्री किसका है, टर्क्स, मुगल्स, who came from outside, and there is an equal emphasis on both these history. दोनों पे क्या है, इक्वल emphasis है. मेरी बात समझ गया. यानी कि what is happening here, here when we are promoting our knowledge, this all is what, a synthesized approach, inclusive approach. मेरी बात समझ गया ना. यहाँ पे हमने हिस्ट्री को इस हिसाब से डिवाइड किया. वी ऑल्सो लर्न द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश पीपल. फॉर एग्जाम्पल पिछली क्लास में हमने लिटन का देखा, ठीक है, कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देखे. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में स्टिमुलस रेस्पॉन्स डिबेट देखा, दोनों एस्पेक्ट देखे. सो दिस इज व्हाट, अ बैलेंस्ड अप्रोच. ठीक है. What you are asking is related to the limitation part. ठीक है ना. When you will overemphasize one particular thing, that is not good. ठीक है. Okay. We have to just we have to synchronize our parameters with international parameters, and we do this. जब हम महाजनपदा पढ़ते हैं, रिपब्लिक्स पढ़ते हैं, तो एक लाइन उसमें ये भी पढ़ते हैं कंक्लूजन पार्ट में, that according to, okay, this the you can say that the system of republics in ancient India had some limitations also. उसकी कुछ limitations भी थी, और वो रिपब्लिक की लिमिटेशन क्या थी, मोनार्कियल सिस्टम के अंदर वो रिपब्लिक था. अब हो गया कि नहीं लिमिटेशन, रिपब्लिक में तो मोनार्कियल सिस्टम आता नहीं है. तो लिमिटेशंस हम क्यों पढ़ते हैं, या जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्हेन दे आस्क एग्जामिन, इवैल्यूएट,
so that we could counter both the arguments. ठीक है ना आकाश? तो ये है और यही synthesized opinion है. This is what we need to know, with this is what we need to understand. ठीक है? Clear? Now चीजें और समझ में आएगी. We will enter into details of Indian national movement, and trust me, what you are going to learn in this part will be helpful in your exam in history paper, will be helpful in other papers, will be helpful in your life, entire life. जो यहाँ सीखोगे, कल को कहीं भी आप कुछ बोलोगे, कुछ स्पीच दोगे, किसी को एड्रेस करोगे, ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप चीजों को समझोगे और आपका नॉलेज धीरे 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 अपग्रेड होता चला जाएगा. ठीक है, नई नई चीजें आप सीखोगे तो वो नॉलेज इंटीग्रेट होगा, और जब वो इंटीग्रेट होगा तो आपकी पर्सनालिटी को और बेहतर बनाएगा. बिकॉज दिस इज आवर हेरिटेज. व्हाट वी आर रेजिंग इज नॉट आवर सिलेबस. इंडियन नेशनल मूवमेंट इज आवर हेरिटेज. वो हमें जानना चाहिए. हम सिलेबस तो पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, बट हाँ एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट्स वगैरह पे हम फोकस भी करना है. गॉट इट? यहां तक बातें समझ में आई? चलो, नाउ आई एम आस्किंग यू सम सिंपल क्वेश्चन. दैट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, some basic differences we have understood. Now if I ask that what is the limitation? लिमिटेशन क्या है? What is the limitation of moderates and limitation of extremists? कुछ पॉइंट्स आप सजेस्ट कर सकते हो. लिमिटेशन ऑफ मॉडरेट्स, क्या लिमिटेशन है इनकी? ये लिमिटेशन हो गया, रिस्ट्रिक्टेड टू द अर्बन एरियाज ओनली. और रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया? दे फेल्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रू नेचर और कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया. क्योंकि वो बिलीव कर रहे हैं, व्हाट दे आर बिलीविंग इन द, you can say that that exactly. Okay, so write this point. Limitation moderates point 1. Limitations moderate point 1. Moderate की limitation क्या है? Point 1. Okay, point 1. Right. Confined only to the urban areas. Confined only to the urban areas. Confined only to the urban areas. Okay. Right. Second point. Overemphasis on the achievements of the West. Overemphasizing on the achievement of the West. Overemphasizing on the achievement of the West. Right, next point. Okay. Believing in the civilizing mission claim of the British was greatest mistake. Believing in the civilizing mission claim was a greatest mistake, because for nearly 20 years, 1885 to 1905, for nearly 20 years, 1885 to 1905, British rule was insensitive to the demand of moderates. ठीक है, अगर आपको इतना ही ज्यादा पे था तो ब्रिटिश रूल को आपकी बात सुननी चाहिए थी. राइट. British rule was insensitive regarding the demand of the moderates. British rule, they were insensitive to the demand of moderates. Okay, got it? Achievements are limited. 20 years है ना, 1885 to 1905, and the achievements are limited. ये बाद में आप समझ पाओगे. Write this. Achievements of moderates were limited in these 20 years. Achievements of moderates were limited in these 20 years. एक और point लिख सकते हो. They lacked faith in the capacity of the common people or the masses. They lacked faith in the capacity of the people or the common masses. उनको लगता था कि prayer petition से काम चल जाएगा. ठीक है ना? एक्सट्रीमिस्ट का क्या था? दे विल हैव फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस. इसीलिए वो फोकस क्या कर देंगे? मास मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स की तरफ या मूवमेंट की तरफ. ठीक है ना? तो मूवमेंट की बात कौन करता है? एक्सट्रीमिस्ट करते हैं फर्स्ट फेज में. जैसे 1905 स्वदेशी मूवमेंट की बात शुरू किसने की थी? एक्सट्रीमिस्ट ने की थी. ठीक है ना? तो क्या लिखा आपने? दे लैक्ड फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस, मॉडरेट्स. ठीक है, अब आ जाओ दूसरी तरफ. लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. ओके, लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म. जब आप इमोशनली चार्ज होते हो तो गलत कुछ ना कुछ कर बैठते हो. ठीक है ना? तो इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म. इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म. राइट. ओवर एम्फेसिस ऑन glorious achievement of past. Over emphasis on glorious achievement of past. Okay, right, next point. Okay,
अब देखो एक और खास बात है, मास मोबिलाइजेशन प्रोग्राम में कौन बिलीव करेगा, राइट दिस पॉइंट, दे हैव अ स्ट्रांग फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मास, ठीक है। और यहां से मैं लिमिटेशन बताने वाला हूं, पहले बात समझो, दे हैव अ स्ट्रांग फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मास, दे विल बिलीव इन मास मोबिलाइजेशन प्रोग्राम। अब लोगों की भीड़ को इकट्ठा कैसे करोगे उस समय, ठीक है, कैसे भीड़ इकट्ठा होती थी, ये हम लोगों ने अपनी लाइफ में भी देखा है, अब नहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है, बट स्टिल दुर्गा पूजा दशहरा चल रहा है, ठीक है, अभी नवमी वगैरह के दिन देखो, बड़े बड़े सिंगर्स आएंगे, भजन वजन होगा, डांस वांस होगा, और फिर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मेरी बात समझ गया ना? एग्जैक्टली exactly. तो अब क्या है कि आज के टाइम में भी हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन सच रिलीजियस सेरेमनीज आर हेल्ड, पीपल मोबिलाइज्ड इन लार्ज नंबर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, एक्सट्रीमिस्ट इसी प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। दे विल डू व्हाट, दे विल ऑर्गेनाइज सम रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, ठीक है, भीड़ इकट्ठी होगी, हिंदू भीड़ भी आएगी, मुस्लिम भीड़ भी आएगी, बस उसमें नारे क्या लगेंगे, रिलीजियस स्लोगन्स। आपने मान लो जय श्री राम बोल दिया, और आपको आपको क्या करना है, वहां से भीड़ को एड्रेस करना है, यू हैव टू एड्रेस द मॉब, एंड व्हेन यू आर एड्रेसिंग द मॉब यू विल हैव टू डिस्कस पॉलिटिकल इश्यूज, कि अंग्रेजों से आपको प्रॉब्लम है, आपके पॉलिटिकल इश्यूज को हिंदू भी सुन रहा है, मुस्लिम भी सुन रहा है, ब्रिटिश को मौका मिल जाएगा डिवाइड एंड रूल का। ब्रिटिश क्या करेगा, अब्दुल्ला को भीड़ से बुलाएगा इधर, कहेगा अब्दुल्ला भाई इधर आओ, ध्यान से सुनो विच स्लोगन्स दीज पीपल आर रेजिंग। नाउ अब्दुल्ला विल से दैट क्या स्लोगन, वो तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक किसी ने आपको ध्यान नहीं दिलाया कि अजान से आपकी नींद खराब होती है, आपकी नींद खराब नहीं होती थी, किसी ने ध्यान दिला दिया कि लाउड स्पीकर से नींद खराब होती है, उस दिन से आपको लगने लगा यार मेरी तो नींद खराब हो रही है, कभी हुई नहीं इसके पहले, क्योंकि हम एक इन्वायरमेंट में ढल चुके हैं, ठीक है। वही काम ब्रिटिश ने किया, उन्होंने ध्यान दिलाया अब्दुल्ला भाई को कि भाई स्लोगन लग रहा है, अब्दुल्ला ने तो ध्यान ही नहीं दिया था, ब्रिटिश ने ध्यान दिला दिया, तो उसने कहा अच्छा स्लोगन, हाँ यार ये तो रिलीजियस स्लोगन है, अच्छा ठीक है, इट मीन्स व्हेन ब्रिटिश विल लीव इंडिया यू आर माइनॉरिटी, आप क्या हो जाओगे, इनसिक्योर, वी आर हियर इन इंडिया टू प्रोटेक्ट यू, if we will leave India, okay, so majority Hindus, okay, will create troubles for you, so until unless British rule is present in India you are safer, and in this way British convinced some of the Muslim masses. 1905 to 1908 there is Swadeshi movement. During Swadeshi movement Ganpati festival, Shivaji festival was used to mobilize the masses, and during this mobilization of masses religious slogans were used. British used it as an opportunity to promote religious enmity between Hindus and Muslims. Swadeshi movement was targeted against the British. Okay, now in order to fight with this movement, British will use divide and rule policy. And in the very next year, 1906, British will give financial help and support, and also will give the idea to form a separate party, exclusive party for the Muslims, that is Muslim League, in the year 1906. ठीक है, तो किसने ध्यान दिलाया, अंग्रेजों ने ध्यान दिलाया, जिस बात पे हमारा ध्यान कभी जाता नहीं था उस बात पे हमारा ध्यान लेके गए, फिर उसके बाद हुआ शुरू खेल हिंदू मुस्लिम वाला 1906 से, ठीक है, और इसका फायदा किसको मिला, ब्रिटिश को मिला, ठीक है, दो देश बना के चले गए वो, इंडिया एंड पाकिस्तान। सोचो आज अकेला हिंदुस्तान होता तो कितना पावरफुल होता है, जस्ट इमेजिन, और दो क्या, इधर एक बांग्लादेश भी तो निकला हुआ है, वो तो हम भूल ही रहे हैं, ठीक है, तीन हो गए ना, ठीक है, ये सब हिंदुस्तान ही तो था, ओके, म्यांमार भी हिंदुस्तान का हिस्सा हो चुका था, ठीक है, उसको सेपरेट कॉलोनी की तरह ट्रीट करना इन्होंने शुरू कर दिया, गॉट इट, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर that we should understand, right? Next point, over emphasis on the religious symbols during the movement, right? Limitation में over emphasis, इंटेंशन कुछ नहीं था, इंटेंशनली रिलीजियस स्लोगन्स लगाए ही नहीं गए, ठीक है, बट अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया, मेरी बात समझ गया ना? नेशनलिस्ट लीडर्स का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि रिलीजियस स्लोगन या रिलीजियस फेस्टिवल से हमें धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, नहीं, इट वॉज अ मेथड टू मोबिलाइज द मासेस, आज के टाइम में भी तो हम यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है, इट वॉज अ मेथड टू मोबिलाइज द मासेस, राइट, दिस religious symbols were used, okay, and British utilized it as an opportunity to promote enmity between Hindus and Muslims. Religious symbols were used, and British utilized it as an opportunity to promote, okay, unity, to promote disunity among Hindus and Muslims. ठीक है, अब देखो, अब now we are entering into the debate, and that is very interesting part.
of this topic. And what is the debate? So देखो the debate there are various opinions regarding formation of Indian nation progress. जैसा मैंने बोला कि the first phase was from 1885 to 1905. यही तो था first phase. And first phase, who was dominating? So moderates were dominating. This is a phase of moderate dominion. Clear? They believed in what? They believed in British sense of justice. ठीक है? They used which formula? They used 3P. That is what? Prayer, petition and peaceful protest. But what was the outcome or result? इसका आउटकम और रिजल्ट क्या रहा इस मेथड का? दैट यू आर बिलीविंग इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, you are using this formula of 3P, that is prayer, petition and protest. But what is the outcome? Outcome was not sufficient, right? It means the British government was not sensitive towards the demands raised by INC. The British government was not sensitive towards the demands raised by INC. It means our achievements were what? Limited achievements, right? Limited achievements. ठीक है? Achievements are limited achievements. आपने पापा से कार मांगी और पापा ने टॉय कार लाके दे दी, ठीक है? मिली तो आपको कार, बट क्या है वो? लिमिटेड अचीवमेंट, ठीक है? सो अचीवमेंट्स वर लिमिटेड अचीवमेंट्स. कहानी बिल्कुल वही है. हम अंग्रेजों से मांग रहे थे कार, ठीक है, और उन्होंने क्या लाके पकड़ा दी? टॉय कार. ये बात तब समझोगे जब मैं आपके साथ डिमांड्स को डिस्कस करूंगा. अचीवमेंट्स वर द लिमिटेड अचीवमेंट. गॉट इट? अचीवमेंट लिमिटेड अचीवमेंट्स. अब इस बात को समझो इस डिबेट में. अगर लिमिटेड अचीवमेंट है और कितने साल बीत गए? 20 इयर्स, ठीक है? एक बॉलीवुड की फिल्म का भी नाम है 20 साल बाद, ठीक है? 20 इयर्स. तो 20 years have passed and the outcome is meager. It is very less, it is insufficient, it is not in sync with the political demands raised by INC leaders. तो एक्सट्रीमिस्ट क्या कहेंगे? एक्सट्रीमिस्ट नाराज तो हो ही जाएंगे. एक्सट्रीमिस्ट विल से तुमसे ना हो पाएगा. मेरी बात समझ गया ना? यही वाला अप्रोच है. इट मींस एक्सट्रीमिस्ट विल बिकम क्रिटिकल. एक्सट्रीमिस्ट विल बिकम क्रिटिकल टू द मॉडरेट स्ट्रेटेजी. जब एक्सट्रीमिस्ट देखेंगे कि यार कुछ नहीं हुआ, 20 years have passed, दे विल से तुमसे ना हो पाएगा. दे विल बिकम क्रिटिकल टू द मॉडरेट स्ट्रेटेजी. और गुस्से में आके तो लोग तमाम पता नहीं क्या क्या बातें बोल देते हैं. और वैसे भी दिस नेशनलिज्म इज इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म, सो दे विल क्रिटिसाइज मॉडरेट स्ट्रेटेजी, ठीक है? एंड दे विल रेज क्वेश्चन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी आल्सो. एक्सट्रीमिस्ट गुस्से में क्वेश्चन उठा देंगे, डाउट करेंगे आईएनसी बनाया किसने? ये वो ह्यूम ने बनाया. क्यों बनाया? कहीं कोई साजिश तो नहीं थी? 20 years हो गए, कोई आउटकम नहीं है, कहीं कोई साजिश तो नहीं थी. सो दे विल गिव extremist leaders, I will later discuss in detail. Extremist leader will give a theory that is called safety valve theory. Okay, and this theory explains the purpose behind formation of INC. Behind formation of INC. They will give a theory that is safety valve theory, and this explains the purpose behind the formation of INC. यहाँ पे लिख सकते हो this raises doubt behind the purpose of INC. एक तरह से क्वेश्चन मार्क है. This is a criticism. Safety valve theory is a criticism of extremists about moderates और moderates strategy. Moderate strategy को लेके ये एक criticism है. This is a criticism. ये criticism है. Got it? ये बात समझ में आई ना? क्रिटिसाइज किया सेफ्टी वॉल थ्योरी. आगे बताऊंगा क्या है, बट इट इज अ क्रिटिसिज्म. ये गुस्से में थे एक्सट्रीमिस्ट, इन्होंने आगे बढ़ के और बोलना शुरू किया. क्या कहा? कहा कांग्रेस इज अ ग्रुप ऑफ फ्लैटरर्स, चापलूसों का समूह है. गुस्से में थे भाई. एक्सट्रीमिस्ट वर क्रिटिसाइजिंग मॉडरेट्स एस्ट्रेटजी. 20 years तक आप डिमांड रख रहे हो और अगर आउटकम सफिशिएंट हो तो गुस्सा तो आएगा ना. तो दे आर सेइंग व्हाट? रेड दिस. कांग्रेस इज अ ग्रुप ऑफ फ्लैटरर्स. कांग्रेस चापलूसों का समूह है. कांग्रेस इज अ ग्रुप ऑफ फ्लैटरर्स. सारे चापलूस भरे हुए, राइट? गुस्से में बोल रहे हैं. दे आर क्रिटिसाइजिंग. हाँ, नहीं, I will discuss later. I told you this is criticism ना. Okay, they are criticizing that Congress is a group of flatterers. और गुस्से में आया, थोड़ा गुस्सा और बढ़ा तो क्या कहा? थोड़ा गुस्सा और बढ़ा तो कहा
कांग्रेस सेशंस आर लाइक हॉलीडे रिक्रिएशंस, छुट्टी मनाने जाते हैं, दिसंबर में होता है इनका सेशन हर साल, एवरी ईयर द सेशन इज हेल्ड इन दिसंबर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे सेशन होता है, सब मौज मस्ती करने जाते हैं, ठीक है, और इनका कोई काम नहीं है। तो गुस्सा इनका और बड़ा, तो क्या कहा, राइट दिस, दे सेड दैट कांग्रेस सेशंस, राइट, कांग्रेस सेशंस आर लाइक हॉलीडे रिक्रिएशंस, ये छुट्टी मनाने जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस सेशंस आर लाइक हॉलीडे रिक्रिएशंस, ठीक है। गुस्सा और बड़ा, तो क्या कहा, कांग्रेस इज लाइक एन opportunistic movement, कांग्रेस इज लाइक opportunistic movement, अवसरवादी आंदोलन है, कांग्रेस इज लाइक opportunistic movement। मजेदार बात क्या है, सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर, लास्ट 3 days ऑफ दिसंबर 28, 29, 30। गुस्से में इन्होंने क्या कहा, कांग्रेस सेशन इज लाइक एनुअल 3 days शो, ये तो 3 दिन का तमाशा है, राइट। गुस्सा इनका बढ़ता जा रहा है, दे आर सेइंग आईएनसी सेशंस इज लाइक एनुअल 3 day शो, ये एनुअल 3 day शो की तरह, इट्स लाइक एनुअल 3 day शो। इससे भी गुस्सा नहीं शांत हुआ, नाउ दे आर सेइंग व्हाट, मॉडरेट लीडर्स आर लाइक फ्रॉग्स, ये मेढक की तरह है, एंड दे क्रूप वंस इन अ ईयर, साल में एक बार टर टर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं दिसंबर के महीने में, ठीक है। सो दे आर अगेन क्रिटिसाइजिंग, दे आर सेइंग दैट मॉडरेट लीडर्स आर लाइक फ्रॉग्स हु क्रूप वंस इन अ ईयर एंड देन दे डिसअपियर, ठीक है, साल में एक बार आना, ठीक है, दे क्रूप वंस इन अ ईयर एंड देन दे डिसअपियर, ओके। सो दिस ऑल इज व्हाट, criticism, criticism of this is about criticism of moderates strategy by the extremist leaders, this all is what, criticism of moderates strategy by extremist leaders। और extremist leaders तो बड़े गुस्से वाले थे, राइट, उनके बोलने का अंदाज अलग था, पहले भी एक एग्जांपल बता चुका हूं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाला, तिलक वाला, याद है ना आपको, व्हाट तिलक सेड, ब्रिटिश सेड दैट वी आर प्रेजेंट इन इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस, इंडियंस की भलाई करने के लिए हम यहाँ, तिलक सेड व्हाट, ओके, व्हाई समवन एल्स विल डेकोरेट समवन एल्स वाइफ बाय स्पेंडिंग हिज ओन मनी, अपना पैसा खर्चा करके दूसरे की बीवी को ब्यूटी पार्लर कौन भेजता है भाई, क्यों भेजता है, ठीक है। तो इस अंदाज में बात करते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, तो भाई एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स गुस्से में, दे आर रेजिंग क्वेश्चंस, doubt about the formation of Indian Nation Congress. Now we need to understand that these doubts or these criticism are justified or not. This we need to understand, right? These doubts are justified or not. So when someone says you safety valve theory, so you will say that it is a part of criticism. This criticism was raised by extremist leaders against the moderate strategy. Why this criticism? Because in these 20 years from 1885 to 1905, which was the phase of moderate dominion, there were limited achievements or the outcomes of Indian National Congress. On one side, Indian National Congress was believing in British sense of justice, and on other side, we see that British government was not sensitive towards the demands of Indian people, we have very limited achievements, हमने मांगी अपने पेरेंट्स से कार, उन्होंने लाके दे दी टॉय कार, यही कहानी। अब इस कहानी को विथ फैक्ट्स, विथ इंफॉर्मेशंस, विथ आर्ग्यूमेंट्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम उतना रह नहीं गया है, ओनली 5 minutes इज लेफ्ट, तो अगली क्लास में इस पूरे के पूरे डिबेट को हम समझेंगे। गॉट इट? 1 पेज आपने छोड़ा है, देयर यू विल डू व्हाट, update informations about INC session. मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, but whenever you are practicing MCQs ना from previous year question booklet, और आपने बुकलेट कौन सी मंगाई है बता चुका हूँ, ठीक है, मैसेज लो, तुमने वीडियो पे ही बोल दिया, ठीक है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने वो बुकलेट मंगा लेनी है, दैट इज अ गुड बुक, ओके, बिकॉज अदर क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस हैं, so there are lot of questions to practice and practice is good, ठीक है, जैसे exercise is good for health, वैसे ही practicing PYQs is good for your result, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना, ओके। So in next class I will discuss these opinions, okay, we will discuss the arguments, अरे it's okay, I was just joking, there is no any problem। घटना चक्र क्वेश्चन बैंक इज अ गुड क्वेश्चन बैंक, यू मस्ट परचेज, अच्छी बुक है, ठीक है, मेरे को उससे कमीशन नहीं मिलता है,
बट स्टिल आई थिंक दैट एक्सप्लेनेशंस वगैरह ठीक है, ठीक है। गुड गुड। अब आपने दूसरी गलती चलो ठीक है, ठीक है, राइट। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए, होती है चीजें इतनी। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।